Kriti, Lavisha. Hello everyone. Good morning, everyone. So, this is our first lecture on figures of speech, poetic devices, literary devices. You keep typing your doubts, whatever are there during the session in chat box. So, I'll be answering your queries live here. Hello, Aryan. So, poetic devices, figures of speech and literary devices, all these actually mean the same thing. एक ही चीज़ को बोलते हैं poetic devices, figures of speech, literary devices. आप कुछ भी बोल सकते हैं और ये normally literature में use किए जाते हैं just to express your ideas more impressive manner. So, poetic devices, as the name suggests, they are used in poetry. Figures of speech, they can be used in speech also, like we have some idioms and phrases to make our speech impressive. And literary devices is for the whole literature, means that is not necessary that they are just used in poetry. They are also used in prose, like essays, novels, stories. But in this particular session, we are going to focus only on the poetic devices. That is the basic devices which are used in poems. Whatever poems we study in our literature, we have some poetic devices. So first we need to understand what are poetic devices, what are these devices, and why do we use them in poems. See, you go to a party and sometimes to look attractive and to look appealing to the viewers, you dress yourself nicely. You apply some makeup, you apply some jewelry, and then you wish to look attractive, before everyone. In the same way, a writer or a poet uses some techniques, using some devices to let the poem look attractive. So how does the poet use it? Basically, these techniques and devices are used to make the poetry, make the piece of writing appealing and impressive to the reader. Like, for example, you have a wedding here at your home. So just to make this wedding attractive, you will use some decoration material, you will use flowers, you will use some garlands, you will use light effects
DJ, all these techniques are used so that the wedding becomes graceful. Similarly, to add grace to a poem, to add grace to a piece of literature, the poet or the writer use some techniques, some devices. So the poetry or the piece of writing, it can be a novel, it can be a story also. It looks attractive and impressive to the reader. So this is how we use literary devices, we use poetic devices and figures of speech in a literature. So we have poetic devices, and we are going to discuss in this particular lecture, we are going to discuss the devices basically related to comparison in poems and also related to repetition. There are certain devices in which a poet draws a comparison, because we are going to discuss only about poetry here. We are not going to discuss about novels and stories. We are going to discuss only those devices which are used in the poems by the poets. So comparison devices, comparison सब जानते हैं, बहुत सारे comparison मम्मा भी घर पे करती है, आप लोगों का comparison बहुत लोगों के साथ किया जाता है, you know, and sometimes चीज़ों का भी comparison किया जाता है day to day life में, you know, अगर आपको कोई चीज़ टेस्टी लग रही है तो आप उसके टेस्ट को कंपेयर करते हो किसी और चीज़ से, एक पर्सन को कंपेयर करते हो, किसी लड़की की ब्यूटी को आप कंपेयर कर सकते हो किसी चीज़ से. तो कंपैरिजन्स बेसिकली होते हैं जस्ट टू मेक इट द होल पीस ऑफ पोएम मोर अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव. तो किस तरह के कंपैरिजन्स हम पोइट्री में करते हैं, विल कम टू डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल. द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन related poetic devices, similes versus metaphor. Now simile versus metaphor, look at the spelling of simile. बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, स्माइल और सिमली में हल्का सा फर्क है, एस के बाद आई ऐड हो जाता है. Similes versus metaphor. Now both of these devices are poetic devices and they are used to draw comparison. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम सिमलीज की बात करते हैं तो पोएम के अंदर कोई भी लाइन है, अगर मैं बोल रही हूँ शी इज़ बिजी, अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बोलूँ शी इज़ बिजी, तो ऑफकोर्स दैट सेंटेंस डज नॉट साउंड मोर अट्रैक्टिव. बट द मोमेंट आई से शी इज़ एज बिजी एज बी, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द बिजी पर्सन with the life of a bee, that is honey bee. So here we are using this word as to compare two things, a busy person and a bee. So wherever the poet draws a comparison using the words like and as and compares with some other object, compares with some other thing, it can be an animal, it can be a bird, then it is a simile. There are more example. As sharp as needle, something is sharp as needle. So again, as is used here. As soft as silk, you can compare the face of a girl with the softness of the silk. You can compare the brightness of something with the sun's brightness. Then, if somebody's word, किसी person के words आपको hurt कर रहे हैं, you are feeling hurt with someone's words, तो आपको पता है उसके words आपको pain कर रहे हैं, तो उन words के लिए आप use कर सकते हो, एक सिमली का यूज़ कर सकते हो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि उसके वर्ड्स मुझे तीर की तरह लगे. वर्ड्स शॉट मी लाइक एरोज, तो एरोज भी पेन करते हैं और नॉर्मली भी आप बोलते हो कि मैं उससे हर्ट हुआ, मतलब उसने जो भी कुछ बोला उसने मुझे हर्ट किया, तो इसको हम सिमली के फॉर्म में कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं. तो लाइक एंड एज का वर्ड का भी यूज़ होता है, तो लाइक और एज. ब्यूटी शोन लाइक फुल मून, अब फुल मून में जो चंद्रमा है बहुत सुंदर लगता है, मून बहुत ब्यूटीफुल लगता है, एंड किसी लड़की की ब्यूटी को, किसी चाइल्ड की ब्यूटी को कंपेयर कर सकते हैं फुल मून से एंड यूजिंग द वर्ड लाइक. बचपन में अक्सर पोएम पढ़ते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. सो हियर स्टार्स आर कंपेयर टू डायमंड्स, स्टार्स आर कंपेयर टू डायमंड्स इन द स्काई. सो डायमंड से कंपेयर किया जा रहा है स्टार्स को यूजिंग द वर्ड लाइक. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली. लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. नाउ लाइफ इज कंपेयर टू द बॉक्स ऑफ चॉकलेट मीन्स लाइफ इज सो स्वीट.
and we are drawing a comparison between life and box of chocolates by using the word like. So this is how like is used. Bhumi, you have not understood the poetic devices. Basically poetic devices poems में use किए जाते हैं. पोएम्स का मतलब जो आप पोएम्स पढ़ते हो लिटरेचर में, कोई भी पोएम, उन पोएम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोएट कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करता है. लाइक जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सिमली एक पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दीज पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड बेसिकली टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द पोएम्स. पोएम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिस तरह से एक लड़की ड्रेसअप होती है, ज्वेलरी पहनती है अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसी तरह से पोएट जो है पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है अपनी पोएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. अगर सिंपल वर्ड्स बोला जाए कि स्टार्स आर शाइनिंग, राइट, स्टार्स आर शाइनिंग एक सिंपल लाइन है. जब भी मैं उसको ये बोल देती हूँ स्टार्स आर लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो वो भी उनकी शाइन को ही डिपिक्ट करता है. बट यूजिंग अ मोर इम्प्रेसिव लैंग्वेज, यूजिंग अ फिगरेटिव लैंग्वेज, सारी की सारी फिगर्स ऑफ स्पीच की जो लैंग्वेज होती है ना, उसको बोला जाता है फिगरेटिव लैंग्वेज. सो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग सिमलीज हियर. अब सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो. सिमलीज और मेटाफर्स में क्या डिफरेंस है. सिमलीज में हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं और दो चीजों को कंपेयर करते हैं. वी कंपेयर टू पीपल, वी कंपेयर टू वन पर्सन विद वन थिंग, और एल्स वी कैन कंपेयर टू थिंग्स विच आर डिफरेंट इन नेचर. तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते, और दे कैन बी सेम इन नेचर, बट कंपैरिजन जो जब भी होगा सिमली में वो लाइक और एज यूज करके होगा. जहां भी आपको लाइक और एज वर्ड दिख जाए दैट मीन्स, और कंपैरिजन दिखे, वहां पे आप देख लीजिएगा साथ ही साथ पोएम में सिमली यूज की गई है. लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे एज यू लाइक इट, जैसा आपको अच्छा लगे, ये अलग चीज है. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है. एज यू फील सो, जैसा आपको ठीक लगे. अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एज वर्ड देख लिया पोएम में और आप वहां पे सिमली ऐड कर दोगे. एज और लाइक लगा होना चाहिए और वो कंपैरिजन होना चाहिए दो चीजों के बीच में. सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ सिमली इन द पोम. नाउ व्हाट इज मेटाफर देन? मेटाफर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन. वो भी एक कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, लेकिन वहां पे लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता. लाइक और एज जो वर्ड्स हैं वहां पे यूज नहीं किए जाते. एंड फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, गोल्डन स्टोन्स. नाउ स्टोन्स हियर, द सैंडी स्टोन्स आर हियर कंपेयर टू गोल्ड, द मेटल गोल्ड. तो वो वहां पे हम पता है गोल्ड स्टोन्स को अगर हम गोल्डन कह रहे हैं तो गोल्ड मेटल से कंपेयर किए गए हैं, बट लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया. अगर मैं सिल्वर वाटर ब्रेक यूज कर रही हूँ, वाटर ब्रेक क्या होता है? पानी जब टूटता है, पानी की लहरें हैं, आपने देखा होगा बीच साइड में पानी की जब लहरें टूटती हैं तो वो बिल्कुल चांदी की तरह रोशनी देती, चांदी की तरह लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं. तो अगर किसी वाटर ब्रेक को मैं सिल्वर बोल रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग लाइक एंड एज, पर कंपेयर तो उसको सिल्वर से कर रही हूँ. एंड दिस इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. तो इसको हम बोलते हैं मेटाफर. अगेन, फ्लावरी किसेस, माई मदर्स फ्लावरी किसेस. अब kisses are compared to the flower. Flowers are also soft and supple. Kisses also give us soft touch whenever somebody does that. So kisses को compare किया गया है flower से without using the word like and as. So we can say it is a metaphor. Then again, lake is a mirror. Lake is not like a mirror. Lake is a mirror. अब lake के अंदर जो reflection होती है lake के water में, आपने देखा होगा, उसके अंदर अपना चेहरा देख सकते हैं. सिमिलरली मिरर के अंदर हम अपना चेहरा देख सकते हैं. दो चीजों को जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं नेचर में, जिनकी नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनको कंपेयर किया गया है मिरर से. बट लाइक एंड एज आर नॉट यूज. लाइक लेक इज अ मिरर, राइट? आई डोंट से शी इज लाइक अ जोकर, आई से शी इज अ जोकर. दैट इज अ मेटाफर, राइट? इफ समबडी इज टू इंटेलिजेंट, बहुत सारा इंटेलिजेंट है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा है, हम नॉर्मली उसको बोलते हैं ही इज एन आइंस्टाइन. साइंटिस्ट आइंस्टाइन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तो वी डोंट से ही इज लाइक आइंस्टाइन, वी से ही इज एन आइंस्टाइन ऑफ अ क्लास. दिस इज मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. कोई लड़की बहुत अच्छा गाती है, बहुत सिंगिंग बहुत अच्छा करती है, तो हम उसको कह देते हैं शी इज लता मंगेशकर ऑफ अ क्लास, राइट? सो दिस इज हाउ वी से
we are directly comparing the person with Lata Mangeshkar and without using like and as. This is comparison direct and we say it is metaphor. Then her snowflake smile. Now smile is like a snowflake. Snowflakes होती हैं, आपने देखा होगा हिली एरियाज में स्नो की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाती है. जब स्नोफॉल होता है ना, snowflakes are formed in different different kind of decorative structures. Snowflakes are formed generally on mountains and hills. तो स्नोफ्लेक जितना कंफर्टिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्माइल भी उतना ही कंफर्टिंग इफेक्ट देती है. सो स्माइल को स्नोफ्लेक से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सो वी से इट इज अ मेटाफर. एंड देन वी से हिज लायन एटीट्यूड. नाउ लायन स्टैंड्स फॉर करेज, लायन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी. जब हम किसी के एटीट्यूड को, किसी के बिहेवियर को लायन से कंपेयर कर रहे हैं, अगेन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, वी से हिज लायन एटीट्यूड मीन्स उसका ब्रेव एटीट्यूड, उसकी क्वालिटी. लायन की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी उसके एटीट्यूड की है, पर हम लाइक और एज का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं. सो इट इज अ मेटाफर. नेक्स्ट शेक्सपियर का बहुत फेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. सारा का सारा जो संसार है एक रंग मंच है. स्टेज क्या होता है? एक मंच जिसके ऊपर आप आके परफॉर्म करते हो. और वर्ड के अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो? यू प्ले डिफरेंट रोल्स. इन द बिगिनिंग यू आर अ चाइल्ड, देन यू ग्रो अप एज अ यंग पर्सन, देन यू फर्दर ग्रो एज एन अडल्ट, देन यू फर्दर ग्रो इन टू ओल्ड एज. तो जिस तरह से लाइफ की अलग अलग रोल्स हैं, हम लाइफ में कभी मदर का रोल प्ले करते हैं, मैन प्लेज द रोल ऑफ अ फादर, समटाइम एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर. सिमिलरली स्टेज के अंदर भी हम अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं. तो शेक्सपियर का बहुत फेमस पोएम है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. अब इज अ स्टेज बोला गया, लाइक अ स्टेज नहीं बोला गया. तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. अब लाइफ को एक रोलर कोस्टर राइड से कंपेयर किया गया है, अगेन without using like and as. Roller coaster ride is what? A roller coaster ride you have ups and downs, like you have ups and downs in life. Similarly on a roller coaster ride you have, कभी आप ऊपर जाते हो, कभी आप नीचे आते हो. Then the thrill you feel on that ride, actually the life is like that only. Life also give you a lot of thrill, lots of ups, lots of downs. So we say these all are metaphors, similes and metaphors. I hope it is clear. Still भूमि इज आस्किंग मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड एज. कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ दो प्रेपोजिशंस हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज की जाती हैं. आप लाइक करके भी किसी को कंपेयर कर सकते हो, एज लिख के भी किसी चीज को कंपेयर कर सकते हो. अभी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं लाइव चैट के अंदर. हर्षिता, अगर आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप इसको लैंडस्केप व्यू में देख लीजिए. लैंडस्केप व्यू में जाके नीचे क्लिक हो जाता है एंड यू विल गेट द व्यू इन द लैंडस्केप मोड. अभी आप आई थिंक नीचे कर रहे हैं तो आपको लैंडस्केप मोड में देखना है, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट. सिमिली मेटाफोर सबको क्लियर हो गया है. वी शैल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट. Okay, after that we come to discuss about next figure of speech, that is personification. Personification क्या है? We all are persons. हम persons हैं, हम human beings हैं. But जो human beings नहीं हैं, they can be animals, they can be things, they can be birds. अगर हम उनको वैसे traits दे दें या वैसे ट्रेड्स से मतलब देके उनके बारे में बात करें कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह लगे, मतलब है तो वो एनिमल्स और बर्ड्स और या वो थिंग्स हैं. इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी अ पैरट, या इट कैन बी एनी लायन, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर यू कैन से इंसेक्ट ऑल्सो. बट द मोमेंट वी इम्बाइब, वी गिव देम द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बींग. हम ऐसी क्वालिटीज दे देते हैं कि वो पर्सन्स की तरह लगे, वो ह्यूमन बींग्स की तरह लगे. उस हम फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. कि एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ को जो पर्सन नहीं है उसको हमने पर्सन वाले ट्रेट्स दे दिए, उनको हमने पर्सन वाली क्वालिटीज़ दे के उनके बारे में ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स हों.
So this is called personification. Look at the examples here. I would read it one by one. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Look at this line. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अब जो crowd word है यहाँ पे, look at this word crowd जो word है यहाँ पे, crowd stands for group of people. We all know. Crowd stands for group of people. And when we talk about, हम crowd किसके बारे में crowd बात कर रहे हैं? A host of golden daffodils. Daffodils are flowers. गोल्डन डैफोडिल्स पोएट ने किसी जंगल में देखे, किसी हिल पे देखे और उसको वो क्राउड बोल रहा है. क्राउड मीन्स वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, काफ़ी सारा बल्क में फ्लावर्स हैं. और क्राउड सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ग्रुप को बोला जाता है, क्योंकि अगर कैटल के ग्रुप की बात करें तो हर्ड बोला जाता है. देयर आर डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स फॉर डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स, बट क्राउड इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल. और गोल्डन डैफोडिल्स इकट्ठे उसने एक साथ देखे और उसने उसको क्राउड बोला, उसने उसको ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटीज दी. सो दैट इज वाई वी से देयर इज पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोम, इन दीज लाइन्स. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. इफ विंटर वर अ पर्सन, शी वुड बी अ गर्ल विथ फ्रॉस्टी हेयर. अब विंटर, सर्दी के मौसम को लड़की से कंपेयर किया गया है. शी वुड बी अ गर्ल विथ फ्रॉस्टी हेयर. तो लड़की के जिस तरह से बाल होते हैं, अगर सर्दी को हम बोलें तो हम सर्दी को वैसे ही लड़की से कंपेयर करेंगे जिसके फ्रॉस्टी हेयर हैं, जिसके फ्रॉस्टी मीन्स स्नो से भरे हुए बाल हैं. विंटर वुड वियर स्नो पैंट्स. अब पैंट्स कौन पहनता है? ह्यूमन बींग्स पहनते हैं. स्नो बूट्स कौन पहनता है? ह्यूमन बींग्स पहनते हैं. ग्लव्स कौन पहनता है? हैट एंड स्कार्फ, दीज ऑल आर worn बाय persons, human beings. So we say winter is compared to a human being, that is a girl. So it is personification here. Next we have I come from haunts of coot and hun. This is the famous poem Brook, the Brook, right? I make a sudden sally and sparkle out among the fun to bicker down a valley. So here I is used only for first person. We all know I सिर्फ ह्यूमन बींग्स अपने लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के पास ही पावर ऑफ स्पीच है कि हम आई कह के बोल सकते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन नॉट से आई. अब यहाँ ब्रूक एक छोटी सी रिवर के लिए आई का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है कि किस तरह से वो कोट और हर्न प्लांट से निकलती है, किस तरह से सडन सैले मीन्स एकदम से मोड़ लेती है एंड उसके बाद वो वैली से नीचे आती है. तो एक छोटी रिवर के बारे में बोला गया है एंड शी इज स्पीकिंग सेइंग आई. So here she is being treated as a person, Yeah, I hope you are understanding. Personification is clear to all of you. Personification किसको समझ में नहीं आया? जब आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, नॉन पर्सन चीज़ों को, जो कि चीज़ें नहीं है, अगर पैरट की बात करें, पैरट इज हैविंग अ मीटिंग. अब पैरट एक्चुअली में मीटिंग नहीं कर सकता, जो मीटिंग है वो इंसान ही कर सकते हैं. आपने फेबल्स के बारे में सुना होगा. फेबल्स होती हैं एनिमल स्टोरीज. एनिमल स्टोरीज को नॉर्मली एनिमल्स को करेक्टर्स की फॉर्म में दिखाया जाता है. लाइक जैसे जंगल बुक है, जंगल बुक में सब एनिमल्स को बोलते हुए दिखाया है. इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइव पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि कभी भी एनिमल्स बोलते नहीं है. उनकी जो भी लैंग्वेज होती है दैट इज ऑलवेज थ्रू जेस्चर्स. अब वहाँ उस स्टोरी में, जंगल बुक में, हर एनिमल को पर्सोनिफाई किया गया है. वन इज शोन एज फादर, एक बंदे को दादा दिखाया गया है, एक बंदे को मदर भी दिखाया गया है. वो ट्रेड्स होते हैं, लेकिन द वे दे होल्ड मीटिंग्स, जिस तरह से वो लड़ाई करते हैं, मतलब जब उनको बोलते हुए दिखाया गया है, दे एक्ट लाइक पर्सन्स. दैट मीन्स दिस इज पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, गिविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू समथिंग विच इज नॉन ह्यूमन, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो चीजें हों. This is personification. Yes, Rishi, Rachit, welcome to the class. You have been a little late, I believe. Okay, now let us understand the next poetic device. Hyperbole. Hyperbole. Hyperbole stands for something which is again a comparison, but बहुत ज़्यादा exaggerated होता है. Exaggerated का मतलब कभी भी आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो.
बहुत बार देखा होगा, मेनी टाइम्स यू हैव सीन कि अगर छोटी सी गलती हो जाए, अगर घर के अंदर आपसे छोटी सी गलती, मान लीजिए पानी का गिलास गिर दीजिए एंड गिरा दिया आपने गलती से किचन में, एंड ममा कम्स टू द किचन एंड शी सेज ओ माय गॉड, सारी किचन में तूने तो नदी बहा दी. सो दिस इज काइंड ऑफ हाइपरबोल. इतना गलती हुआ नहीं है, लेकिन मम्मा ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया. जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके, एक्सट्रीम करके एक्सप्रेस करते हो, इतना वो उसका एक्सटेंट नहीं होता, उसके एक्सटेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल. आपने हाइपर टेंशन वर्ड सुना होगा, हाइपर टेंशन. हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपर टेंशन. तो हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हाइपरबोल में जो आपकी स्पीच है वो हाई हो जाती है. हाई मतलब वॉल्यूम में नहीं, हाई इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. आप इतनी चीज होता नहीं है, छोटे काम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल. अब एग्जाम्पल्स देखोगे तो और क्लियर हो जाएंगे. ही इज एज स्लिम एज अ टूथपिक. अब टूथपिक देखो, डाइनिंग टेबल पे आपने टूथपिक पड़ा हुआ देखा होगा कई बार आपके घर में. यू पिक फ्रूट्स विद दैट. फ्रूट की जो चॉप फ्रूट्स होती है, आप उसे काट के टूथपिक से खाते हो, राइट. सो बेसिकली ही इज एज स्लिम एज अ टूथपिक. इतना पतला है जैसे कि टूथपिक. आप एक किसी के बंदे के पतले को, मतलब स्लिमनेस को आप टूथपिक से कंपेयर करो, इट इज अ हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, क्योंकि टूथपिक जितना पतला तो कोई भी नहीं हो सकता. इट इज लाइक हाइपरबोल. दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल. देन दैट जोक इज सोल्ड. वो जो उसका जोक है इतना पुराना है. द लास्ट टाइम हर्ड इट आई वाज राइटिंग अ डायनासोर. अब डायनासोर हैव वैनिश्ड इनटू द फ्रॉम दिस वर्ड. डायनासोर्स अभी नहीं है. तो इतना पुराना जो कि डायनासोर्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि डायनासोर्स के ऊपर राइट कराऊं, मतलब इतने पुराने जमाने में चला गया मैं. अब कोई भी जोक इतना पुराना नहीं हो सकता कि आप डायनासोर्स के जमाने में चले जाओ. यू नो, एंशियंट क्रिएचर्स, डायनासोर्स वर वेरी एंशियंट क्रिएचर्स. और एक ओल्ड पुराने जोक को इतना पुराना कहना कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड में चले जाओ जहां से आप बिलोंग ही नहीं करते. सो दैट इज हाउ वी आर सेइंग इट इज हाइपरबोल. आप चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, यू आर एक्सैजरेटिंग, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करके चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो. माई ज्योग्राफी टीचर इज ओल्डर देन द हिल्स. हिल सबसे ज्यादा पुरानी गिनी जाती हैं. अगर किसी की ओल्ड एज को, किसी के बुढ़ापे को आप पहाड़ियों से भी ओल्ड कहो तो दैट मीन्स इट इज एक्सैजरेशन. आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. माई ज्योग्राफी टीचर, मेरे जो ज्योग्राफी टीचर हैं पहाड़ियों से भी पुराने हैं. पुराने एंड और से बूढ़े हैं. जितनी पुरानी पहाड़ियां हैं उससे भी बूढ़े हैं मेरे ज्योग्राफी टीचर. सो a person's old age is compared to hills. और hills का origin किसी को नहीं पता, hills कैसे बनी थी. that those have been made, you know, way back in the ancient mythological time. So we can say to compare a person and exaggerating the details. Again, I would fly to the moon and back if you will be. Fly to the moon. अब चंद्रमा तक कौन उड़ के जा सकता है and उसके बाद वापस आ सकता है. इट्स समथिंग रेयरली हैपन्स. इफ यू विल बी, कोई भी किसी काम कराने के लिए बोलते हो कि मैं, अगर तुम मेरी बात को मानोगे, अगर तुम यहाँ पे होगे, इसका मतलब एक्चुअल में है कि मैं इतना ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि मैं चंद्रमा के ऊपर उड़ के वापस आ गया. इफ यू विल बी, अगर तुम यहाँ होगे, सो आई विल बी सो हैप्पी. बट उसको ऐसे बोलना कि चंद्रमा के ऊपर जाके और उसके बाद वापस आ गया, इतना खुश हो जाऊंगा. सो दिस इज हाउ वी आर एक्सैजरेटिंग. हम इसको बहुत एक्सट्रीम सेंस में यूज कर रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. दिस इज अगेन द प्लेट इज लाइक अ फुल मून. ये आपकी कैट वाली जो दिस इज द मिस्ट्री कैट इन क्लास 8 सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी. द प्लेट इज लाइक अ फुल मून. अब छोटी सी प्लेट है, डिश प्लेट, जिसके अंदर मिल्क रखा हुआ है. द कैट कम्स टू ड्रिंक दैट मिल्क एंड उसको जो प्लेट लगती है, इट लुक्स लाइक अ फुल मून, उसको चंद्रमा की तरह लगती है. सो दिस इज अगेन एन एक्सैजरेशन. एक छोटी प्लेट को फुल मून से कंपेयर कर रहे हो. दैट्स अगेन वेरी मच, यू नो, बढ़ा चढ़ा के आप बात कर रहे हैं. सो यू कैन से हाइपरबोल इज यूज्ड हियर इन दिस कंटेक्स्ट. द इन्फेंट साइज लाइक अ मॉन्स्टर. अब जो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसकी जो आंखें होती हैं उनके अंदर इनोसेंस होता है. अगर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डर भी हो या थोड़ा थोड़ा अगर फ्राउनिंग भी आए किसी वजह से, तो फिर भी हम उसको मॉन्स्टर से तो कंपेयर नहीं कर सकते. मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, अ जायंट. तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसकी आइज को मॉन्स्टर से कंपेयर करना इज अ हाइपरबोल, कि आप बहुत एक्सैजरेट कंपैरिजन कर रहे हो वहां पे. या एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट हियर इन दिस? हाइपरबोल किसको नहीं समझ आया?
हाइपरबोल का मतलब सिर्फ यही होता है कि बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को कहना। अब ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं बेटा कि जब ज्योग्राफी टीचर बूढ़े हैं तो उनको हिल से कंपेयर करा। अब मैं बहुत खुश होऊंगा, इतना खुश होऊंगा जैसे मैं चांद की सैर कर आया, तो ये भी एक एक्सैजरेशन है। अब छोटी सी घर में एक प्लेट है, उसको फुल मून से कंपेयर कर रहे हो, राइट, या पूरे समुंदर से कंपेयर कर रहे हो, तो वो भी एक एक्सैजरेशन है। देन छोटे बच्चे की आंखों को राक्षस से कंपेयर कर रहे हो, मॉन्स्टर से कंपेयर कर रहे हो, ये भी एक एक्सैजरेशन है, राइट। जोक इतना पुराना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डायनासोर पे बैठा हूं, बहुत पुराने जमाने में चला गया, तो वो भी एक एक्सैजरेशन है। वो बंदा इतना पतला है कि टूथपिक जैसा लगता है, तो टूथपिक जितना पतला कोई भी नहीं हो सकता, दिस इज अगेन एन एक्सैजरेशन। ऋषि एंड रचित, हाइपरबोल समझ में आ गया आपको अच्छे से बेटा? अंडरस्टूड और नॉट? ऋषि, रचित, आर यू देयर इन क्लास? ओके, लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट। अभी हम आते हैं रेपिटेशन डिवाइसेस पे। अभी तक जितने भी हमने किए हैं बेटा, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, वो कंपैरिजन थे, वो सारे के सारे कंपेयर कर रहे थे। अभी जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग रेपिटेशन डिवाइसेस। रेपिटेशन में क्या है? रिपीट होगी। क्या चीज रिपीट होगी? हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज रिपीट होती है, तो दीज आर कॉल्ड रेपिटेशन डिवाइसेस। अब कौन से फिगर ऑफ स्पीच में क्या चीज रिपीट होती है, हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। इसको अगर आप ध्यान से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझोगे, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू इन फ्यूचर। यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स इन दैट। अगर आपके चैनल को अभी तक किसी भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है जो लाइव है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट यू ऑलवेज गेट द अपडेट्स अबाउट आवर लाइव क्लासेस, बिकॉज लाइव क्लासेस हमेशा अनाउंस नहीं होंगी, दे वुड बी जस्ट कमिंग इन योर दिस नोटिफिकेशंस। सो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेपिटेशन डिवाइसेस की ओर बढ़ते हैं। पहला रेपिटेशन डिवाइस है एलिट्रेशन। स्पेलिंग ध्यान से देखो, बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। एलिट्रेशन में टी के बाद ई नहीं लगाते, ALLITERATION, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एलिट्रेशन। टंग ट्विस्टर्स हमने सबने सुने हैं ना, बैटी, बॉटर, हैड सम बटर। अभी एक वीडियो भी रिसेंटली रिलीज किया था, टंग ट्विस्टर विद मार्शमेलो चैलेंज, अब वो जाके वो भी देख सकते हैं अगर आपने एलिट्रेशन को अच्छे से समझना है। बैटी, बॉटर, हैड सम बटर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एलिट्रेशन को समझने के लिए हमें ये समझना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स आर देयर, A-E-I-O-U, एंड रेस्ट ऑल 21 आर कॉन्सोनेंट्स। यानी A-E-I-O-U को छोड़ के बाकी सब के सब कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो एलिट्रेशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स की लुक एट दिस, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है सेम लाइन के अंदर होनी चाहिए, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फर्स्ट लेटर में होनी चाहिए। अब लुक एट दिस लाइन, बैटी, बॉटर, हैड सम बटर। बैटी, द फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट, दैट इज ब। बॉटर, द फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट, दैट इज ब। had some butter, b. First sound is consonant, that is b. So in the same line, consonant sound is repeated, and it always appears as the first syllable. First syllable means first letter में वो sound आ रही है, बीच में कहीं नहीं आ रही है। तो आपको alliteration में यही main चीज ध्यान में रखनी है, that same sound of consonant is repeated as the first letter of each word. First letter की वो sound होनी चाहिए, तभी वो alliteration होगा। Same, Peter, per, first sound. Piper, per, first letter sound. Picked, per, first letter sound. Peace, per, first letter sound. Paper, per, first letter sound, P. So, per sound is repeated in this line, which is a consonant sound, and in the first letter, so it is alliteration. Then, black background, brown background. So, here again, b sound is repeated as a first letter sound, as a consonant. B, 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 b. Wandering in the woods, wo sound is repeated here of W,
As in wondering, the first sound is v, and woods, the first sound is v. Wind, winnowing, v again is repeated as the first letter sound. Slum, slender, sight. So sound is repeated, which is a consonant sound, and in the first letter of the word, each word it comes. So this is alliteration. Alliteration clear हो गया बेटा सबको? That's great. That's great. So let's proceed to the next poetic device, assonance. अब assonance में क्या है? ये भी repetition है, but ये consonant repetition नहीं है, ये vowel sound की repetition है. Vowel sound. अगर आप फर्स्ट लाइन में देखोगे, a host of golden daffodils. Look at o o o. Host o, golden o, daffodils o. So o sound is repeated in this line, which is a vowel sound. We say it is assonance. The rain in Spain stays mainly on the plain. So here a, rain, Spain, a, stay, a, mainly, a, plain, a sound is repeated in this particular line, which is again a vowel sound. This is assonance. Next, Harshita, what is your doubt? Your doubt is about tongue twisters? Okay, next, sell the wedding bells. Here, sell, a sound. Wedding, a sound. Bells, a sound. So here again a vowel sound is repeated, and I have already underlined all the vowel sounds, so you can say it is an example of assonance. Look at another example. Vowel sound is repeated. Vowel sound is repeated in assonance, Janvi. Vowel sound. Vowel sound is like, it can be the sound of a in a sentence. It can be the sound of o in a sentence. It can be the sound of e. Here, look at this fourth example. Beside the lake, beneath the trees. So when we have a long e, that is why we have not taken e of beside here, because it is a short sound. Beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So a long e sound, that is trees, breeze, beneath. So we have a long e sound coming, that which is of a vowel. So that is how assonance is there. Janvi, assonance. The woods are lovely, dark and deep. The woods are dark. Sound is repeated here, which is again a vowel sound, and we say this is as an example of assonance. Yeah, Aryan, clear हो गया assonance? Suman, Harshita, Janvi, I hope assonance is clear to you. When you would say yes, it is clear, I would proceed to the next figure of speech. Assonance, Harshita, is clear to you or not? Harshita, Aryan, assonance is clear? Harshita, Aryan. Okay, last part. The woods are sound is repeated. Dark and deep, sound is repeated. Aryan, I hope it is clear. Sound is again a vowel sound. Okay, so let us proceed to the next, consonants. Yes, Rachit, what doubt you have?
अब कॉन्सोनेंस को ध्यान से समझना, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जो बना है वो कॉन्सोनेंट से बना है, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट से बना है। इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड की ही रेपिटेशन होती है। एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन थी और कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में? डिफरेंस ये है कि वहां पे जो कॉन्सोनेंट साउंड थी एलिट्रेशन के अंदर, वो लेटर की फर्स्ट साउंड थी, और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट लेटर अगर रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होती है, वो वर्ड के किसी भी पार्ट में वो साउंड आ सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो फर्स्ट लेटर में ही वो साउंड होगी, इट कैन बी इन द मिडल, इट कैन बी एट द एंड। अब लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस, ट्रैफिक, लुक एट दिस साउंड, फर्स्ट साउंड हियर इज कमिंग इन द मिडल, ट्रैफिक, सो फर इज इन द मिडल। फिगर्स, यहाँ पे फर्स्ट साउंड स्टार्टिंग में आ गई। ऑन जुलाई 4th, यहाँ पे जो फर्स्ट साउंड है स्टार्टिंग में आ गई फोर्थ में। एंड टू बी टफ, टफ में फर्स्ट साउंड जो है, चाहे UGH है लेकिन साउंड फ ही है, तो ये जाके स्टार्टिंग में नहीं, ये एंड में आ गई। सो हियर ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4 टू बी टफ, first sound is not coming as the first letter sound, it is coming sometimes in the middle, sometimes at the end of the word, so we call it consonants, we call it consonant. What is medallion? I did not understand this doubt. Medallion, did I use that in my lecture? Okay, look at the second example. Zach sneezed when he heard jazz music. Zach. In Zach, za has come in the beginning. Sneezed, in this word sneeze, za has come in the middle. When he heard jazz, here za sound has come at the end. Then music, in music also za sound is there, though the letter is S but the sound is za, and it is in the middle. So here z sound is repeated, which is a consonant sound in the beginning, in the middle and at the end. So consonant sound is repeated in various places in the word. It is not necessarily the first letter sound. Look at example number 3. Did Dan get a medallion? He was doing his duty. Oh well, conduct him to the stage. So here look at the song. Did Dan. Did Dan got a medallion? Da sound sometimes. Sometime is in the middle, sometime is in the beginning. He was doing his duty. Da again. Oh well, conduct. Now da sound in conduct here is in the middle. So da sound is coming in various parts of the word. So we can say it is an example of a consonant. Then Tiffany's, for sound, Tiffany for middle, offensive again middle, for remarks disturb Jeffrey again middle, the other staff members, for staff में जो for sound है वो पीछे चली गई, last पे चली गई. So here first sound is again, यहाँ पे Tiffany में जो middle में आ रही है, offensive में थोड़ा starting में आ रही है एक letter के बाद, फिर Jeffrey में फिर 2 letter के बाद आ रही है, then staff में last में आ रही है. So this is how first sound is not initially. The medallion का meaning, medallion is basically you can say a piece of jewelry in the shape of a medal. So basically medallion medal का ही form है, जैसे आप medal पहनते हो. So whatever you something to wear on while going to the stage. So this is how, right? We have to look at the sound here. Basically the sound da is there in the various parts of the word, so it is called consonants. Pitter patter, twist and shout. अब देखो pitter patter again here, twist and shout में देखिए pitter में T sound जो है
स्टार्ट मिडल में आ रही है, पैटर्न में भी मिडल में आ रही है, ट्विस्ट में जो टी साउंड स्टार्टिंग में भी है एंड में भी है, और शाउट में जो टी साउंड है वो एंड पे है। तो हेयर कॉन्सोनेंट साउंड जो ट है दैट इज कमिंग इन डिफरेंट लोकेशन। एक वर्ड की लोकेशन देखो बेटा, वो फर्स्ट लेटर है, वो सेकेंड लेटर में आ रही है वो साउंड, या थर्ड लेटर में साउंड आ रही है, या वो लास्ट लेटर में वो साउंड आ रही है। तो अगर उसकी पोजीशन वेरिएबल है तो वो कॉन्सोनेंस होगा। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड फिक्स्ड पोजीशन पे होगी, क्योंकि फर्स्ट लेटर की में वो होगी हमेशा, वो कहीं और नहीं जा सकती, वो हमेशा फर्स्ट लेटर में वो साउंड होगी। और कॉन्सोनेंस में हमेशा वो साउंड अलग अलग जगह में, वर्ड्स के अलग अलग जगह में, कभी फर्स्ट लेटर में, कभी सेकेंड लेटर में, कभी लास्ट लेटर में, इस तरह से जाएगी। सो दिस इज कॉन्सोनेंस। लविशा, इज इट क्लियर बेटा? Medallion is basically a piece of jewelry which you wear, beta. It is basically used to decorate. Like a medal you wear. I am replying, Rishi, I am replying your messages as well as I am seeing your messages in between. So if I become silent during the class, that doesn't mean that I'm not speaking, I'm not continuing the class. रेपिटिशन पे आ गए सब लोग? फियर लीड, रेपिटिशन क्या होता है बेटा? एक ही लाइन में जब पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है, सेम लाइन में। अब एक लाइन है, उसके अंदर एक वर्ड दोबारा से रिपीट हो जाए 2 बार 3 बार, तो हम उसको बोलते हैं रेपिटिशन। तो इट इज द रेपिटिशन ऑफ वर्ड, right? So we say fear leads to anger, anger leads to hatred. So anger word is repeated in this line, so we say it is repetition. Next sentence, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यहाँ पे जो miles word, miles to go before I sleep, चाहे एक phrase है but एक ही line में जो repeat हुई है, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, एक ही लाइन के अंदर जब पूरा का पूरा वर्ड फ्रेज रिपीट होता है उसको भी रेपिटिशन बोला जाता है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, ओ वूफुल, ओ वूफुल, वूफुल मीन्स सैड, वूफुल डे मीन्स सैड डे, वूफुल that means very sad day. So here, so we say woeful word is repeated and o word is also repeated in the same line. We say it is an example of repetition. Let it know, let it know, let it know. Again, a phrase is repeated in the same line. So let it snow, let it snow, let it snow. So snow word is repeated, let it snow word is repeated, word phrase is repeated. We say it is repetition. A horse is a horse, of course. Here horse word is repeated in the same line. So it is an example of repetition. Rishi, voice is coming to you?
Let us understand anaphora. What is anaphora? Anaphora is again repetition, but ये repetition थोड़ी अलग तरह की है. पोएम के अंदर लाइंस होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन. अगर एक साथ एक के बाद एक लाइन में सेम फर्स्ट वर्ड जो है सेम आ जाए, रिपीट हो जाए, हम उसको बोलते हैं एनाफोरा. सो द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन. And needy, nothing trimmed in jollity. And word is the first word of first line. And purest faith unhappily forsworn. And word is again in the second line. And gilded honor shamefully misplaced. So in these three lines, and word is repeated as the first word. We have to see that the first word has to be the same word of each line. So this is how anaphora. Look at another example. From the memories of the bird that chanted to me, from your memories, sad brother, from the fitful risings and fallings I heard, from under that yellow half moon late risen and swollen as if with tears. Don't go with the meanings. Explanation में मत पढ़ो, गहराई में मत जाओ. Just look at the repetition of the word from as the first word of each line. So from word is repeated. That is called anaphora. अब एक के बाद एक लाइन आ रही है और एक ही वर्ड जो है, एक ही वर्ड से वो लाइन शुरू हो रही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, और कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए एक के बाद एक. ये नहीं है कि एक लाइन सबसे ऊपर है फिर एक लाइन पोएम के बिल्कुल नीचे है. एक पैराग्राफ में, एक स्टैंजा में वो लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जैसे हम कहते हैं हैट्रिक, तो एक वर्ड की हैट्रिक या डबल एंट्री भी अगर हो जाती है, दो बार भी वो वर्ड सेम फर्स्ट वर्ड रिपीट हो जाता है, लाइन का फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो, तब हम उसको बोलते हैं एनाफोरा. योर आईज बिहाइंड योर व्हील आर डोव्स, योर हेयर इज लाइक अ फ्लॉक ऑफ गोट्स. तो यहाँ पे जो योर वर्ड रिपीट हो रहा है, और नीचे सेकंड वाली लाइन में देखो, योर हेयर इज लाइक अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, लाइक वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ये सिमली भी है, साथ ही साथ यहाँ सिमली भी है. और भी बहुत सारी पोएम्स में बहुत सी और फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी सिर्फ हम एनाफोरा पे फोकस कर रहे हैं. तो पहले स्टैंजा में एंड वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड रिपीट हुआ है, सेकेंड स्टैंजा में फ्रॉम जो वर्ड रिपीट हुआ है एज अ फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन, थर्ड स्टैंजा में योर वर्ड रिपीट हुआ है एज फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन. सो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा व्हेन सेम वर्ड इज यूज्ड इन एज द फर्स्ट वर्ड इन वन लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कॉन्सिक्यूटिवली, वन आफ्टर द अदर. ये नहीं है कि एक लाइन पहली है तो दूसरी लाइन, दूसरा जो बार एंड आ रहा है 10th लाइन में आ रहा है, एक के बाद एक अगली लाइन में ही वो आना चाहिए. दिस इज एनाफोरा. I hope it is clear. I think anaphora is clear to all of you. Say yes if it is clear to you. रेफ्रेन. रेफ्रेन क्या है बेटा? रेफ्रेन का मतलब भी रेपिटेशन है, जब पूरी की पूरी लाइन पोएम में रिपीट होती है. रेफ्रेन में पूरी की पूरी लाइन रिपीट होती है. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. व्हेन दैट आई वाज एंड अ लिटिल टाइनी बॉय, with hey ho the wind and the rain, a foolish thing but was what a toy, for the rain its strength every day, but when I came to man's estate, with hey ho the wind and the rain. सेकेंड लाइन देखिए, with hey ho the wind and the rain. देन दोबारा फिर से ये लाइन रिपीट हुई है, with hey ho the wind and the rain. तो एक लाइन जब पूरी की पूरी लाइन पोएम के किसी भी पार्ट में रिपीट हो जाती है एज इट इज, उसको हम बोलते हैं रेफ्रेन. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी लाइन रिपीट हुई है? विद हे हो द विंड एंड द रेन. विद हे हो द विंड एंड द रेन. इट कैन बी एनीवेयर इन द होल पोम. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. कार्ल सोलोमन, I am with you in Rockland. Where you are madder than I am with you in Rockland. I am with you in Rockland. Where you must feel very strange, I am with you in Rockland.
Where you imitate the shade of my mother, I am with you in Rockland. So I am with you in Rockland is repeated, this line is repeated again and again in this stanza or poem. So we call it an example of refrain. पूरी पोएम के अंदर, एक लाइन के अंदर नहीं, पूरी पोएम के अंदर वो लाइन कंप्लीट जो है रिपीट होनी चाहिए. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेफ्रेन. Another example. Till last by full lips palm I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Then another stanza of the same poem. I chatter, chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. So there, for men may come and men may go, but I go on forever. Full line is repeated of the whole poem. This is an example of refrain. So refrain is clear to all of you? So we have discussed the poetic devices related to comparison and repetition. There are many more poetic devices which we are going to learn in the next class, and definitely you will be informed about it whenever we'll have next live class to understand with examples and many more interesting things. So till now, if there is any doubt, you can get back to me. 4 to 5 minutes are left for the class to end. Clear your doubts if there are any. Simile, metaphor, personification, hyperbole, anything you want me to repeat, I will repeat it for you. Alliteration. Alliteration is a consonant sound repetition. Let's go back to the alliteration. Consonant sound. बट वो कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ आनी चाहिए? लेटर के, वर्ड के फर्स्ट लेटर में. बैटी, बॉटर, बटर. ब साउंड इज द फर्स्ट लेटर. पीटर पाइपर पिक्ड. प साउंड इज द फर्स्ट लेटर. ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड. ब साउंड इन द इनिशियल लेटर, फर्स्ट लेटर. वॉन्डरिंग वुड्स, फर्स्ट लेटर. विंड विनोइंग, फर्स्ट लेटर, व साउंड. स्लम, स्लेंडर, साइट, फर्स्ट लेटर. स्लम का फर्स्ट लेटर, स्लेंडर का फर्स्ट लेटर, साइट का फर्स्ट लेटर, एस. So sound. So alliteration means the repetition of consonant sound as the first letter of the each word in the same line. That is alliteration. Janvi, any other doubt? So that's all about the class on figures of speech today. I hope you really learnt and many different things, and we'll hope to see you soon in the next free class. Live classes will be continued as today, and most probably they will be on Sunday so that you can utilize your time better and the holiday. So make sure you join us next time as well with the same spirit. Thank you for watching and being connected with us.
एंड स्क्रीम करनी होंदी है बेटा एंड स्क्रीम स्ट्रीम करनी होंदी है कमली